Hi friends, I am Preeti Agrawal. Welcome to my channel. Today I am going to discuss a very important unit of paper 1, that is communication. This video will lay a strong foundation for the preparation of this unit. Not only for the students, those who are appearing in GSET examination, but also for the students who are appearing in UGC NET. Action is the foundational key to all success. So आप लोगों ने पढ़ना तो शुरू कर ही दिया होगा। चलिए अभी आज हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? कम्युनिकेशन एंड इट्स प्रोसेस, टॉपिक 1। टॉपिक 2 है दैट इज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। टॉपिक 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टॉपिक 4 is characteristics of effective communication. Topic 5, Principles of Classroom Communication. Topic 6 is Barriers of Communication. Topic 7 is Mass Communication and its impact on society. Communication क्या है? Communication is a process which takes place around us all the time. आप घर पे हो, अपनी मदर से, फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से कम्युनिकेट करते हो। When you are going outside, कॉलेज आते हो, अपने फ्रेंड से, टीचर से कम्युनिकेशन करते हो। इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, वहां पे कम्युनिकेट करते हो टू बाय समथिंग। मॉल में घूमने जाते हो, इफ यू गोइंग टू रेस्टोरेंट, सो एवरीवेयर यू आर कम्युनिकेटिंग। Not only the human being, but also the birds, animals, reptiles, all are communicating in their societies. So communication एक process है। Everything, whatever is done by us, it requires process. So इसे जैसे कि सपोज करिए कि आप किचन में जा रहे हो पिज्जा बनाने के लिए, तो पिज्जा बनाने का भी एक प्रोसेस है। इसी तरह से कम्युनिकेशन भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है? पहले एक सेंडर है, सेंडर के माइंड में आइडिया आता है, दैट आइडिया इज नोन एज मैसेज। वो उस आइडिया को फॉर्मुलेट करता है, दैट इज नोन एज एनकोडिंग। अब उसने उस आइडिया को फॉर्मेट कर लिया, वो एक व्हीकल से भेजेगा। वो व्हीकल, वो चैनल को हम कहते हैं मीडिया। एंड आफ्टर दैट वो किसको भेज रहा है? सामने वाले पर्सन को। दैट पर्सन इज नोन एज रिसीव। रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया, तो वो उसको इंटरप्रेट करता है, समझने की कोशिश करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकोडिंग। उसके बाद वो समझने के बाद अपना रिस्पॉन्स देता है, विच इज नोन एज फीडबैक। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैं ये सेशन दे रही हूँ आप लोगों को, so that is also a communication. So there are 4 key components in communication के। One is encoding, second is medium of transmission, third is decoding, fourth is feedback. अभी communication मैंने आपको बताया कि हर everywhere we are to do the communication. So that is why this is omnipresent. Whenever we are doing communication, sender और receiver होते हैं. So this is a two-way process. Human beings, animals, reptiles, birds, सभी लोग communicate करते हैं अपने अपने societies में. So that is why this is universal. हमारा way of talking at home is different. अगर हम ऑफिस में हैं तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा। टीचर से बात करते हुए हमारा कम्युनिकेशन अलग होगा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो डायनेमिक है। सोशल प्रोसेस है, मैन इज अ सोशल एनिमल। सो इफ
a man is to live in a society. Communication is a necessary process and it is a continuous process. सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर ने फिर से सेंडर को फीडबैक भेजा. So this process keep on going. As there are many persons are involved in the communications and the communication is done with different people with different purpose. So that is why there are different types of communications. So the first communication is based on relationship. That is intrapersonal communication. Intra means within. जब एक पर्सन खुद से कम्युनिकेट करता है दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. आप कई बार डे ड्रीमिंग कर रहे होते हो, अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे होते हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर आपने एग्जाम से पहले कुछ लर्न करना है, सो मेडिटेशन करना है, वी आर प्रिपेयरिंग for the examination and before going to the examination हम pray करते हैं. All these are intrapersonal communication. Inter means between. Interpersonal communication whenever the communication takes place between persons. It can be between two persons and it can be between more than two persons. Means आप अपने friend से communicate कर रहे हो. So that is also the interpersonal communication. Group communication whenever we are doing the communication in a group. Mass communication whenever the information is delivered to a large group of people. That is known as mass communication. अभी इस इंफॉर्मेशन को किस व्हीकल के थ्रू भेजा जाएगा? That is the channel communication. So there are two ways: verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication means the communication which is done by words. It can be oral, it can be written. Non-verbal communication is a communication which is done by signs, symbols, gestures, हमारे postures, body language से जो communication होता है. आप लोग दमसिराज खेलते होंगे तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. ड्राइव करते हुए हम जाते हैं, साइड्स पे सिंबल्स होते हैं अलग अलग, वो भी आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. नाउ communication based on purpose. If you are communicating in an office, so that is the formal communication. Communication with friends is informal communication. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, जब ऑफिस की मीटिंग के बाद ऑफिस के कलीग कुछ गॉसिपिंग करते हैं अबाउट दैट टॉपिक, दैट इज नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. नाउ द डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. horizontal communication when the communication is done among the people of same rank. आप स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हो या टीचर्स आपस में डिस्कस करते हैं, so that is your horizontal communication. Vertical communication is a communication between the persons of different ranks. It can be upward and it can be down. सपोज करिए कि कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है. सो प्रिंसिपल इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द टीचर एंड द टीचर्स आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शन. सो दिस इज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. And sometimes students are facing some problem in college. So students are telling their problem to teachers and the teachers are telling the students' problem to principal. They cannot communicate directly to the principal. So that is known as upward communication. So vertical communication, two types, that is downward and upward. Diagonal communication, that is a communications between the persons of different ranks of the same organization or डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सपोज करिए कि हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट के लिए सर्जरी होनी है, तो व्हाट द डिपार्टमेंट डज,
वो ऑपरेशन से पहले उसको कुछ टेस्ट करने हैं, जिसके लिए वो पैथोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करेंगे, एंड देन ऑपरेशन से पहले उनको एनेस्थीसिया देना है, तो वो एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे. सो सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन. अभी कम्युनिकेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. एक्टिव लिसनिंग. अगर रिसीवर प्रॉपरली सेंडर के मैसेज को सुन रहा है, whenever there is a face to face contact, then only the communication can be effective. स्टूडेंट्स टीचर के लेक्चर को प्रॉपरली सुनेंगे तभी तो वो समझेंगे. आफ्टर लिसनिंग they are giving the proper feedback, then only the communication can be effective. The listener should listen the problem of the audience and उसको उसी तरह से communicate करना चाहिए, so that audience should analyze that the listener is paying attention to their problem. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डायनेमिक. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहिए, एंड उस समय हमें डाइवर्सिटी भी लानी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ चीजें हम किसी के सामने थर्ड पर्सन को नहीं कह सकते. सो फॉर दैट वी आर टू ड्रॉप मैसेजेस. कई बार हम गेस्चर ऐसा दिखाते हैं, गेस्ट घर पे आते हैं एंड मम्मा को हमें इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं, सो वो आपको कोई ना कोई ऐसा गेस्चर देती है कि डोंट डू दिस या डू दिस. सो दैट इज अ डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. And the communication can be effective only when our emotions are in our control. हमारा किसी से झगड़ा है एंड उसके बाद मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, एंड मुझे सपोज करिए कि क्लास लेनी है, एंड देन उस झगड़े का इफेक्ट मेरी क्लास के सेशन पे नहीं आना चाहिए. सो सेंटर्स शुड कंट्रोल देयर इमोशंस while delivering, while communicating with the other person. These are the other characteristics. कंसाइसनेस होनी चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में. स्मॉल एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज होने चाहिए. क्लैरिटी होनी चाहिए. कंक्रीटनेस होनी चाहिए कि वॉट एवर द मैसेज इज टू बी गिवन दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. कोहेरेंट होना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. And the sender should have the confidence that whatever the message he is providing, that is a proper message. Consistency of the message should be there. Consideration of the other ideas, other needs is an important part of the effective communication. While communicating, there should be very humble and politeness होनी चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. मोस्टली ये पॉइंट्स हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिस्कस कर लिए हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम में कब हो सकता है? जब टीचर को बहुत क्लियरली पता हो कि व्हाट शी इज टू एक्सप्लेन. सो टीचर का कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं उसको पॉजेस देने चाहिए. किस लिए पॉजेस देने चाहिए? ताकि वो स्टूडेंट्स के बारे में जान सके, स्टूडेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सके, एंड कहीं 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 पे उसको पॉज लगाना चाहिए इन अ ह्यूमरस वे टू बिकम एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स. एंड इक्वालिटी रखनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स में. ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट है टीचर शुड गिव प्रेफरेंस टू दैट स्टूडेंट्स. Teachers should repeatedly ask questions in the class to make the classroom active. While asking the questions, teachers should encourage the students to participate in the activity, and teachers should motivate the students. But teacher should not tolerate any type of misbehavior in the class. अगर उसको क्लास में प्रॉपर डिलीवरेंस ऑफ द लेक्चर करना है, तो क्लास शुड बी इन प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर. डिफरेंट टेक्निक्स एंड एड्स यूज करनी चाहिए टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक.
whenever we are communicating, there are few barriers. ये barriers कैसे होते हैं? Sometimes it happens, आपका और आपके फ्रेंड का झगड़ा हो जाता है, तो 2-3 days के बाद जब आप उससे बात करना शुरू करते हो, तो ये मोस्टली सुनने में आता है कि मैंने उस समय ऐसा नहीं कहा था, मेरा मतलब ये था। सो दीज आर द बैरियर्स, है ना, ऐसे बैरियर्स बहुत बार होते हैं। चलिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अगर सेंडर या रिसीवर इंट्रोवर्ट है, सो देन दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। सोशल बैरियर्स, हमारा बॉस अगर हमारे से प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो वर्क प्रॉपर नहीं होगा। लिंग्विस्टिक बैरियर्स, whenever there is a different language and the receiver is not able to understand our language. Culture, अगर differences in culture है, तो of course barriers will be there. Physiological, अगर कुछ physical problem है, then the barriers will be there. परसेप्चुअल प्रॉब्लम है या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें मालूम ही नहीं है कि ये इस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए मुझे किसको अप्रोच करना है, देन दैट इज व्हाट बैरियर। सिमेंटिक बैरियर, whenever a person is not able to understand the exact meaning of the message. Physical and the technical barriers. Mass communication is a very important topic these days. This is a process where the information is spread to a large group of people which are having the different mentality. इसमें मास कम्युनिकेशन में मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज आर द ट्रेडिशनल हमारे मास मीडियाज थे। These mass medias can be electronic and it can be printed also. These are the left hand side में जितने भी मैंने mass media शो किए हैं, these were the traditional mass medias and these are the new mass media. And अभी तो digitalization हो चुका है, तो social media has become very active. And इसका mass media, how it plays an important role. मास मीडिया क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है अलग अलग वे से, और उसको रिलेट करने की कोशिश करता है। देन it is also a source of entertainment. It provides education to the students. It provides lifelong learning. अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे किसी भी एज के लोग कभी भी कहीं भी कुछ भी नॉलेज if they want to gain, so they can get through mass media. एंड इस तरह से वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आता है मास मीडिया, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मेकिंग देम अवेयर अबाउट द थिंग्स। देन उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, देन सोशल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है, एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन to bring into the mind of the people ki what is going wrong in the system, those who are handling the higher authority in our society. So with this topic is over, and in the next video I'm going to discuss few questions relating to this unit. Till then, revise the concept, keep learning, happy learning. Goodbye, thank you.